Hare Krishna. Shall we start? Am I audible? मैं सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ. Say yes. Yes, Prabhuji. Okay, perfect. So let's start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. आप सबको बहुत बहुत स्वागत है. I welcome all of you for our session on Bhagavad Gita. As all of you had remembered, I hope all of you have remembered. ऐसे नहीं होना चाहिए कि छोड़ो कल की बातें. तो हम लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि किस तरह how Arjuna is giving various reasons of not fighting, and that's the sign of a depressed person, disturbed person. A disturbed person, detachment is not a excuse for a depression. Sometimes we think, oh, this person is very detached. But detachment or renunciation is not a product or a function of depression. It's not that I am depressed, I am suppressed. Oh, what can be done? Angur khatte hain, so I am detached. Detachment actually is empowerment. तो Arjun was getting detached. ना मेरे को युद्ध करना नहीं है. But ऐसा नहीं कि he was detached. He was frustrated, depressed. So he was giving various reasons जो हमने देखा लास्ट क्लास. बट आपको एक हैरानी होगा, आप पूरा प्रथम अध्याय पढ़ लीजिए. यू रीड द एंटायर फर्स्ट चैप्टर, यू विल नॉट फाइंड a single sloka where Krishna is speaking anything. Krishna is completely silent. 46 verses have passed out of 700 verses. 46 verses have passed, of which half of that, 50%, Arjuna is only speaking. 50% of the chapter 1, Arjuna is speaking, and Krishna is just silent. And today, in the first part of our session, third session, we are going to see why Krishna was silent. Right? Just to cover up the previous sessions in the PPT. I hope all of you are able to see the PPT. So in the previous session, we saw that how Arjuna is playing the part of an ordinary human being. It's not that Arjuna is actually confused. We should not be confused that how Arjuna can be confused. He is such a great devotee of Lord. भगवान के इतने बड़े पार्षद हैं, वो कैसे विचलित हो सकते हैं? तो हमारा क्या? तो Arjuna is just playing the part of human being. We saw the example of the Bahurani and Sasuma, right? If you remember. So that we can derive some lessons from his confusion.
So the first confusion was Arjuna's attachment to his kinsmen, who were actually murderers, aggressors, right? So he was telling how I can kill them. And then we saw affection versus attachment. Affection is required, but attachment is dangerous. We saw the difference, and we saw some examples of how people who were attached, like Dhritarashtra, Duryodhana, Karna, Hiranyakashipu, all these people, those who were attached, they landed up into severe problems in their life. And then we saw that how Arjuna is giving reason that I will get pap, I will get reactions. If I fight in this war, I will kill so many people, I will get reactions. And we saw the example of a soldier, how a soldier, when he fights for the right cause, he doesn't get the sinful reactions. But still, Arjuna is telling them that these Kauravas are aggressors and he is the king. He is supposed to kill the aggressors. And he is telling that I'll get reaction. And we also in the end saw how Krishna's plan is perfect. We saw the story of Krishna Chandra and Gopal Bhand, where Krishna जो भी करते हैं सब अच्छाई के लिए करते हैं. And we saw that how we need to count the blessings of God. We may see it in our perspective that it is a curse, but actually it is a blessing. So that is why first chapter, if you see the what was the name of the title of the first chapter was Observing the Armies. युद्ध क्षेत्र को अर्जुन ने दृष्टिगोचर किया, देखा. और अर्जुन किस तरह दृष्टिगोचर किए? अपने चेतना से, अपनी चिंताधारा से. अब भगवान नेक्स्ट सेकंड अध्याय से लेके 18 नंबर मतलब 17 अध्याय में भगवान बताएंगे अर्जुन को युद्ध भूमि को किस तरह सही तरीके से देखना है. How to observe the Yuddha Bhumi in the right perspective. That's what Krishna is going to explain in the further 17 chapters. But the most interesting thing is that if Krishna is anyway going to explain, and Krishna loves Arjuna very much. Yes, if you read Bhagavatam and Mahabharata, how Arjuna and Krishna used to sleep. Arjuna used to put his leg on Krishna's stomach, and Krishna used to put his hand on Arjuna's chest, and like that they used to sleep. That was the deep friendship between Arjuna and Krishna. And this sometimes the queens of Krishna used to feel a little bit of jealousy. क्या ये अर्जुना पीछा ही नहीं छोड़ेगा क्या? हमारे इधर ही रह जाता है, बार बार आ जाता है, हमको थोड़ा प्राइवेट टाइम नहीं मिलता है. But that was the relationship between Krishna and Arjuna. But amazingly, if Krishna is so much related to Arjuna, so much he loves Arjuna, why Krishna is not speaking anything? Krishna is silent. And the entire Arjuna is bakar kar rahe hain, but Krishna is not speaking anything. So that is what we are going to see in today's session in the beginning. That is why Krishna is silent in the first chapter. The reason why Krishna is silent in the first chapter is because Arjuna was treating Krishna as his friend. And hence Krishna reciprocated. Arjuna didn't ask any suggestions. And that is why Krishna also didn't give any suggestions. Suggestions and advice is not supposed to be given to a friend. Arjuna was treating Krishna not just a friend, but he was treating Krishna as a charioteer. Right? Role of a charioteer, सारथी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइवर का रोल हमारे गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्राइवर अगर सही जगह नहीं लेके गया या फिर एक्सीडेंट कर दिया, ड्राइवर तो परेशान होगा, गाड़ी तो परेशान होगा, उसके साथ हम भी परेशान होंगे. अर्जुन ने अपना जीवन का सारथी जो भगवान को मानना था, अर्जुन अपने रथ का सारथी भगवान को मान लिए.
ये गलती कर बैठे। अर्जुन was supposed to make Krishna as his chariot driver of his life, but Arjuna made Krishna the chariot driver of his chariot. अपने जीवन का सारथी नहीं बना के अपने रथ की सारथी बना दिए, और रथ की सारथी का रोल तो बहुत ही नगण्य होता है। और भगवान भी उसी तरह बोले। कोई सारथी बोलेगा क्या? कोई ड्राइवर आपको सजेशन देगा क्या? ठीक है साहब आप जो करेंगे, ऐसे नहीं है, साहब आप जो बोलेंगे सही है, आप जो करेंगे सही है। तो भगवान भी बोले कि ठीक है अर्जुन, तुम तो अपने आप को साहब समझता है और मैं तो सारथी हूं तुम्हारा रथ का, तो तुम जो बोला सही है। तो उसी तरह हम भी कभी कभी हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और हम क्या बोलते हैं? हे भगवान, आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अगर हम अर्जुन, प्रथम अध्याय का अर्जुन की तरह बिहेव करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना क्यों सुनेंगे? भगवान बोलेंगे भी तो हमको सुनाई कहां देगा? हम तो भगवान को ग्रोसरी मास्टर, ग्रोफर सोप, अमेज़न समझ रखे हैं। भारत में भगवान को ग्रोफर्स, अमेज़न, बिग बाजार समझ के रखते हैं। एक तालिका लेके आते हैं, अपनी वाइफ दे देती है, ये लेके आ जाइए, और आ जाते हैं, कुछ पूजा कर देते हैं, बट लिस्ट बहुत बड़ा है। मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये सारा खत्म होगा ना तब ना भगवान का कुछ आवाज सुनाई देगा। और एक भी लिस्ट अगर डिलीवर नहीं हुआ या प्रोडक्ट डैमेज निकला, बाप रे बाप, भगवान आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? भगवान कोई है ही नहीं, मैं कितना अच्छा हूं। तो उसी तरह भगवान को हम ऑर्डर सप्लायर मान चुके हैं। जिस तरह अर्जुन भगवान को ऑर्डर सप्लायर माने थे, जाइए, अर्जुन क्या बोले? 21 नंबर श्लोक या 22 नंबर ऐसे देखेंगे कि हे अच्युत, जाके रथ लगाओ। तो अगर भगवान ऑर्डर सप्लाई बन गए तो भगवान भी ऑर्डर सप्लाई कर लेंगे, पर आपकी समस्याओं का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कृष्णा जस्ट बिकेम द ऑर्डर सप्लायर, ऑर्डर रिसीवर ऑफ अर्जुना। बट व्हेन अर्जुन, पहले द्वितीय अध्याय में शुरुआत में जब अर्जुन सरेंडर्स फाइनली as his master, हे भगवान, आप भगवान है, आप मेरे गुरु बनिए, आप मेरे टीचर बनिए, मेरे को पढ़ाइए, तब कृष्ण बोलना चालू करते हैं। ये श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक ये भगवत गीता में आता है, इसको नोट डाउन करके रखिए। द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक, जहां पे अर्जुन भगवान को अपना रथ का सारथी हटा के जीवन का सारथी निर्वाचन किए। इन दिस श्लोका अर्जुना डिक्लेयर्ड कृष्णा नॉट हिज चैरियट ड्राइवर ऑफ हिज चैरियट, but chariot driver of his life. And when we make Krishna as the chariot driver of our life, then when we observe with that vision the world, then we will never be depressed in life. We will always be satisfied and we will always be successful in life. So all of you repeat this. Karpanya doso pahata swabhavaha. कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। गच्छामि त्वं धर्म समुद्धचेतः। यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्य तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। यस, कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, मेरा स्वभाव कार्पण्य, कृपण हो गया है, मैं दुर्बल हो गया हूं। धर्म सम्मूढ़ चेतः,
मेरा सम्मूढ़ता हो गया धर्म का, मतलब मैं क्या सही है क्या गलत है समझ नहीं पा रहा हूं भगवान। यत श्रेय, मेरे लिए क्या सही है, श्रेय मतलब सही, शुभ, अच्छा, निश्चित, निश्चित रूप से मेरे को बताइए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। देख रहे हैं, तुरंत इधर अर्जुन दोस्त से हट के शिष्य बन गए। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। जब तक हम किसी को अपना जीवन का टीचर निर्वाचन नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदलेगा नहीं। भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे सही तरीके से, तो हमको हमारा जीवन का दृष्टिकोण बदलाने के लिए भगवान आए हुए हैं। तो कृष्णा इज स्पीकिंग, कृष्णा स्टार्टेड स्पीकिंग only when Arjuna surrendered and made Krishna his teacher. Otherwise कृष्णा बोले ठीक है आप अपना बकर बकर करते रहिए और जो भी करना है करिए। And Krishna was doing like that because ज्ञान जो है, knowledge flows from top to bottom. On the same level, there is no flowing of knowledge. So we have to accept someone as teacher who has, at least we have to believe that this person has little more knowledge than me. Then only we can get knowledge, na? So when Arjuna accepted Krishna that he has more knowledge, I should take help from him. And then Krishna gave help. So that is why Guru is means heavy. Guru, Guru मतलब heavy. Gurutva, Gurutva आकर्षण. हेवी चीजें गिर जाता है, आकर्षित हो जाता है, करेक्ट? गुरुत्व आकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व आकर्षण। तो गुरुत्व मतलब इट इज जो हेवी है, गुरु मतलब हेवी। तो इसका मतलब क्या है? इफ आवर टीचर सेज समथिंग and we should understand, the whole world may say something, but if the teacher is telling something, Bhagavad Gita is telling something, it is more important than what the whole world is telling. If Bhagavad Gita is telling that this is how you should lead your life, then we should be ready to mold our life according to Bhagavad Gita. That is meaning of accepting Bhagavad Gita as our teacher, as our guru. Not that Bhagavad Gita पढ़ लिया ठीक है बहुत अच्छा, 2-3 श्लोक याद कर लिया. There are so many scholars, they have remembered all the 700 slokas of Bhagavad Gita, but their life is not changed. Why? Because they have not made Bhagavad Gita as the chariot driver of their life. For them, Bhagavad Gita is not just an ordinary book, but Bhagavad Gita is telling us how to live a life according to his principles, so that we can be satisfied and happy. So going ahead, there is a very famous story of two friends who are trying to learn harmonium. So two friends decided that in this lockdown we will learn harmonium, because we need to learn something. Schools are not happening, so what can be done? Let us learn harmonium. Exams are not happening. Just imagine, everyone studies for exam, and imagine exams are not happening in India, so who will study? So these two friends decided that we should have a harmonium learning session. So individually they went to one teacher. One friend was asked by the teacher, do you know harmonium? आपने कभी harmonium सीखा है? This friend said, yes. I have almost learned the basics of harmonium. I know everything, what is harmonium, how to play, and all those things I know. And the teacher said to the person, okay. You will take almost 8 months to 1 year to learn harmonium. 8 महीने से लेके 1 साल तक आपको लगेगा, और महीने में 300 रुपए देना पड़ेगा. Okay, so then this friend went. And then the next friend goes to the teacher and he says, do you know harmonium? No, I don't know H of the harmonium. Harmonium का H भी मेरे को आता नहीं.
हो आपको हारमोनियम का एच नहीं आता है, ओके ओके ओके, आपको 150 रुपए महीने में देना पड़ेगा और 6 महीने में आप सीख जाएंगे। And these two friends started talking in phone in the evening कि गया क्या हारमोनियम टीचर के पास? हाँ गया, 300 रुपए मांगा और बोला 8 महीना से 1 साल लगेगा। तो वो बोला हाँ मैं भी गया, मेरे को 150 रुपए बोला और 6 महीना लगेगा। तो ये व्यक्ति जिसको 300 रुपए बोला था, डबल चार्ज बोला था, गुस्सा हो गया। अरे मेरे को आता है हारमोनियम और मेरे को डबल चार्ज कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है टीचर में। तो फोन किया टीचर को, कह रहे मेरे को आता है, मेरे दोस्त से आप 150 रुपए ले रहे हैं, मेरे से 300 रुपए क्यों ले रहे हैं? तो दिस टीचर सेड, हाँ 150 rupees is actually the deleting charges. Whatever all those nasty things have put in your brain, उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, 3 महीना लग जाएगा और फिर पढ़ाना चालू करूंगा तो 6 महीना लगेगा, तो 9 महीना बोला है। और कभी कभी थोड़ा स्पिल आउट हो जाता है, आगे 10 महीना 12 महीना भी हो सकता है, पर 150 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रहा हूं वो तो डिलीटिंग चार्जेस है। क्योंकि गंदगी जब तक डिलीट नहीं होगा तो अच्छा चीज कैसे होगा, इंस्टॉल कैसे होगा अच्छा चीज? तो उसी तरह हम अगर अपने हिसाब से जाएंगे शिक्षक के पास, अपनी दृष्टिकोण से भगवत गीता पढ़ेंगे, तो हमको भगवत गीता कभी समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता को समझने के लिए हमको गुरु वर्गों की, आचार्यों की और अर्जुन रूपी समर्पण के साथ समझेंगे तो भगवत गीता को हम अपने जीवन में लागू कर सकते। तो अगर हम सोचेंगे मेरे को भगवत गीता आता है, भारत में सबको भगवत गीता आता है पर कोई भगवत गीता फॉलो नहीं करता। किसी को भी पूछिए आपने भगवत गीता पढ़ा है? जरूर पढ़ा है। एक श्लोक बोल देगा कर्मण्यवाधिकारस्ते, भगवत गीता बोलता है कर्म ही पूजा है। कर रहा है मर्डर, सीरियल किलर है, टेररिस्ट है, कर्म ही पूजा है सीरियल किलर, कर्म ही पूजा। आप तो हैरान हो जाएंगे, हम सुन के हैरान हो गए कि बहुत बड़ा व्यक्ति जो रेप किया था उसको सजा हो गया, सजाए मौत हो गया, और वो सुप्रीम कोर्ट को अपील करता है कि भागवत में आता है कि कलयुग में तो उम्र कम हो जाता है, एनीवे तो मैं जल्दी मर जाने वाला हूं, मेरे को फांसी दे के फायदा क्या है? नालायक, ऐसे वो अपील किया है भागवत से। मानो बहुत बड़ा भागवत कथाकार है, बहुत बड़ा भागवत पढ़ा है, वो विद्वान है, ऐसा लिखता है। तो सब भागवत भगवत गीता को अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं। ये व्यक्ति भी भगवत गीता को, भागवत को अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। श्लोक सही लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को अपील किया है, श्लोक सही लिखा है कि हाँ कलयुग में आयुष्य कम हो जाता है, बट उसको एप्लीकेशन गलत जगह कर। तो इसीलिए खाली भगवत गीता पढ़ लेना, श्लोक को याद करना बहुत महत्वपूर्ण नहीं। अर्जुन की तरह समर्पण के साथ हमको पूछना चाहिए प्रश्न, जिज्ञासा होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये द्वितीय अध्याय, प्रथम अध्याय कैसे मैं लागू कर सकता हूं। भगवत गीता इज अ डायलॉग, इट इज नॉट ए मोनोलॉग। डायलॉग और मोनोलॉग में अंतर यह है कि ये बातचीत है कृष्ण और अर्जुन के बीच में। और उसी तरह भगवत गीता को अगर हम अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमको भी प्रश्न पूछना पड़ेगा कि किस तरह इस चीज को मैं अपने जीवन में उतारने का कोशिश करूं। तो इस तरह हारमोनियम टीचर का कहानी हमको शिक्षा देता है कि हम अगर अपनी दृष्टिकोण के साथ जाएंगे भगवत गीता पढ़ने के लिए तो फायदा नहीं होगा। पहले हमको अपना दृष्टिकोण को डिलीट करना पड़ेगा और with an open mind, clean slate, we should read Bhagavad Gita to understand Bhagavad Gita nicely. So if you see the second chapter overview, the second chapter has 4 sections. The first section says about Arjun, भगवान को शरणागति होता है, भगवान he surrenders to Krishna. So that is the first section which we discussed, and we discussed only one sloka. And then there is the knowledge of soul, which is the basis of Bhagavad Gita. भगवान पहले जो ज्ञान देते हैं
वो है आत्मा का ज्ञान देते हैं, और आगे जाके हम देखेंगे क्यों वो करते हैं। और तीसरा है नॉलेज ऑफ ड्यूटी, दायित्व का विज्ञान बताते हैं भगवान। और चौथा है किस तरह हम अपनी दायित्वों को, कर्म को पूजा बना सकते हैं। कर्म ही पूजा है, करेक्ट, दिस इज स्टेट राइट स्टेटमेंट व्हिच इंडियंस मोस्ट ऑफन स्पीक, दैट भगवान कर्म के लिए भेजे हैं, कर्म ही पूजा है। पर कौन सा कर्म पूजा है, भगवत गीता का 2 अध्याय में 4 सेक्शन में भगवान बता रहे हैं। सो भगवान भगवत गीता का ज्ञान भगवत गीता का बेसिस, फाउंडेशन से चालू करते हैं। अब कोई भी बिल्डिंग ले लीजिए, उसमें फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फाउंडेशन नीम कहलाता है। नीम मतलब जो पूरा बिल्डिंग को सहारा दे। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिल्डिंग है पर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग गिर जाता है। तो इसी तरह जितना भी हमारा ज्ञान है, वो फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, लैपटॉप बनाने का, लैपटॉप रिपेयर करने का, स्मार्टफोन यूज करने का, स्मार्टफोन रिपेयर करने का, टीचिंग करने का, सर्जरी करने का, कुछ भी ज्ञान हो, उस सारे ज्ञान का जो बेसिस है, फाउंडेशन है, वो प्रथम भगवान दे रहे हैं, वो है आत्मा का ज्ञान, कि किस तरह हम जीवात्मा हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह ये फाउंडेशनल नॉलेज है, और इस फाउंडेशनल नॉलेज को जब हम समझेंगे तब आगे जाके हम सब कुछ समझ पाएंगे। जब तक हम सोचते रहेंगे कि मैं ये शरीर हूं, तब तक भगवत गीता कभी समझ में नहीं आएगा। पहले हमको समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, जीवात्मा हूं, मैं कभी मृत नहीं हो सकता हूं, मैं शाश्वत रूप शाश्वत हूं। ये पहले समझाते हैं भगवान, तब जाके पूरा भगवत गीता हमको समझ में आएगा। सो दैट इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन इज कि व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, कि हमारा जीवन का आइडेंटिटी क्या है, अस्तित्व हमारा क्या है। और अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्तित्व जब तक सही नहीं है तो हमारा जीवन भी सही नहीं चलेगा। उदाहरण स्वरूप एक लड़का एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ने लग गया था। फूड एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होता है, और आईआईटी में भी होता है, हमारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। बहुत सारा एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के बारे में टेक्निक्स सीखा वो। पिताजी उसके किसान थे लड़का का। बहुत 3 साल सीखने के बाद घर आया, घर आके देखता है पिताजी बहुत कष्ट करके पुराना टेक्निक, बहुत पुराना जो बाबा आदम जमाने का टेक्निक होता है ना, वृक्ष रोपण करने का, कल्टीवेशन का, उसको यूज कर रहे हैं। कुछ तो पेड़ लगा रहे हैं, कुछ तो पेड़ का सिंचन कर रहे हैं, पानी वानी दे रहे हैं। तो लड़का आता है पिताजी को, किसान, उनके पिताजी तो किसान है ना, मैं तो आईआईटी का एग्रीकल्चरल इंजीनियर हूं। लड़का आगे पिताजी को बोलता है कि पापा, बाबा, बाबूजी, मेरे को लगता नहीं कि आप जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, बाबा आदम जमाने का जो टेक्निक यूज कर रहे हैं, इस टेक्निक से ये पेड़ 10 साल में भी आम नहीं देगा। 10 साल लग जाएंगे शायद भी, मेरे को लग रहा है कि आम फलेगा कि नहीं। तो पिताजी बेटे को देखे गौर से और बोले कि बेटा, कि मेरे को तो लगता है कि ये टेक्निक से शायद जीवन भर में कभी भी ये आम फल नहीं दे पाएगा। वही तो मैं बोल रहा हूं पिताजी, ये बिल्कुल आम का फल नहीं दे पाएगा। तो बाबूजी बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये तो जामुन का पेड़ है और आम का फल देगा कैसे, 10 साल का जीवन भर में ही नहीं दे पाएगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। टेक्निक बहुत समझ गया वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग आईआईटी में, आइडेंटिटी भूल गया, तो फायदा क्या है।
एक इरिगेशन टेक्निक बहुत सीख गया, फर्टिलाइजर कैसे जाना है, पेस्टिसाइड कैसे देना है, कब समय में पानी देना है, क्या देना है, पर कौन सा पेड़ लगाया है वो उसको ज्ञान नहीं, तो फायदा क्या, आइडेंटिटी अस्तित्व ही पैदा नहीं। तो इसी तरह मॉडर्न मैन इज ट्राइंग टू लर्न what not type of gadgets every month. The speed of the gadgets are increasing, terabytes are increasing, processors are increasing, 11th generation Intel has come. But are we becoming intelligent with the 11th generation Intel inside? Or the intelligence is just getting shifted to our computer and we are becoming foolish within, like this boy. Just having a 11th generation Intel processor will not make us intelligent. This person have done agriculture and engineering from IIT, but because he doesn't have the knowledge of identity, he is speaking just foolishly. So that is why Krishna is also speaking in Bhagavad Gita to Arjuna, oh Arjuna, you are speaking like a Pandita, but you don't have any knowledge of who is a Pandita. Nanu sochanti Pandita. If you see a verse, Krishna says, Arjun, you are speaking like a wise man, but I am telling you are simply a number one fool. This is what Krishna says in Bhagavad Gita in the just after Arjuna surrenders and Krishna opens his mouth chastising Arjuna. अर्जुन को गाली मारते हैं कि अर्जुन तुम सोच रहा है कि तुम बहुत बड़ा पंडित है, तुम बिल्कुल पंडित नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने बहुत टेक्निक सीख लिया, स्किल्स सीख लिया, पर आइडेंटिटी का ज्ञान भूल गया। So that is why Krishna first gives the basis of knowledge, that is the 3 levels of existence, जो हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया था, which Krishna says that we have a hardware, software, and we are the user. This body, this physical body is like a hardware, which is made out of earth, water, fire, air, ether, Pancha Mahabhut. And the software is our subtle body, Suksma Sarir. एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। And Krishna इसके हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बारे में भगवद गीता 7वें अध्याय का 4था नंबर श्लोक में बताते हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च, ये 8 प्रकार की जो एलिमेंट है कृष्ण बोल रहे हैं, ये हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनता है इसमें। पर खाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटर तो चाहिए ना। लैपटॉप है, पर लैपटॉप चलाने वाला जब तक नहीं रहेगा, लैपटॉप क्या चलेगा। ड्राइवर है, गाड़ी है, ड्राइवर जब तक नहीं रहेगा क्या गाड़ी चलेगा। उसी तरह आत्मा, हम आत्मा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं। तो जो लाइफ फोर्स है वो है ऑपरेटर, जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, जिसके बारे में पहला ज्ञान भगवद गीता में भगवान देते हैं। आप सब मेरे पीछे पीछे उच्चारण कीजिए। देहिनोस्मिन् यथा देहे, विजय विजय विजय, हरे कृष्ण। देहिनोस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तर प्राप्तिर्, तथा देहान्तर प्राप्तिर्, धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान क्या बोले, पहला ज्ञान, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, 2 अध्याय 13 नंबर श्लोक। देहिनो अस्मिन, ये देह के अंदर अर्जुन, देह मतलब जो शरीर दिख रहा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो भी,
उसके अंदर यथा देह, देह के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और कौमार यौवनम जरा, और वो व्यक्ति, देह तो बदलता है पर वो व्यक्ति बदलता नहीं है, वो सेम व्यक्ति बैठा हुआ है। जिस तरह आप देखेंगे, आप छोटे से बड़े हो गए, आप तो बदले नहीं ना, आपका जो आइडेंटिटी है वो बदला नहीं। हम क्या बोलते हैं, मेरा बचपन का शरीर, राइट। तो धीरस तत्र न मुह्यति, और फिर जब जिस तरह वही जीवात्मा शरीर, इसी जीवन में ही शरीर बदलता है। देखिए, इसी जीवन में ही हमारा शरीर बदल गया है, पर हम बदले नहीं हैं, हम वही हैं। तो उसी तरह जब ये शरीर काम नहीं करेगा, फिर से हम आत्मा शरीर बदल के दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है। तो आत्मा हम हैं, और मृत शरीर से हमारा अंतर क्या है, उसको जानने के लिए भगवान ये बताते हैं कि चेतना का जो लक्षण के बारे में बताते हैं। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ चेतना। जैसे आपको कोविड हुआ है कि नहीं, उसका कुछ सिम्टम्स दिखाई देता है ना। ऐसे नहीं, कुछ सिम्टम नहीं है, आप चल जाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर एडमिट कर दीजिए, क्यों ना कोविड हो गया। ऐसा नहीं होता है। यू शो सम सिम्टम्स, तो उस सिम्टम्स से पता चलता है कि क्या बीमारी अंदर है। कोविड का दूसरा सिम्टम होता है, टीबी का दूसरा होता है, टाइफाइड का दूसरा होता है, डेंगू का दूसरा होता है, मलेरिया का दूसरा होता है। और एक्सपर्ट डॉक्टर जो होता है वो सिम्टम से पता लगा सकता है। तो उसी तरह हम आत्मा हैं, और मृत शरीर और आत्मा में अंतर क्या है, वो सिम्टम से पता चल सकता है। आत्मा का 3 सिम्टम है जो कोई भी मैटर नहीं दिखाता है, वो है फीलिंग, थिंकिंग एंड विलिंग। भावना करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, इच्छा करने की शक्ति। उदाहरण स्वरूप, मेरा टेबल और मेरा चेयर, मैं बैठा हुआ मेरे टेबल चेयर के ऊपर, आप देख पाएंगे, देखो चेयर है और टेबल आप देख नहीं पा रहे, कैमरा का व्यू नहीं जा रहा है, बट टेबल है, लैपटॉप है। तो मेरा टेबल और चेयर, ये मेरा टेबल और चेयर पिछले 4 साल से मेरे को सेवा दे रहे। कभी भी मेरे को बोले नहीं मेरा चेयर कि तुम भी कुमारा है और मेरे को भी कुमारा रख देगा क्या, मेरा शादी करवा दो ना, कितना अच्छा होगा। एक छोटी सी चेयर, नाटी सी चेयर से शादी करवा दो। तुम तो सन्यासी हो, तुम तो इसमें आनंद हो, मेरा भी थोड़ा ख्याल करो। कभी ऐसा बोलेगा मेरा चेयर? मेरा टेबल बोलेगा कि हाय 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 हाय, किसके घर में आ गया, ये तो इतना सुंदर नहीं है, ये शरीर इतना पतला है, क्या है। कैसा होता मैं अगर ऐश्वर्या राय के घर में, अमिताभ बच्चन के घर में रहता, कितना सुंदर होता ना। ऐसे सोच सकता है मेरा टेबल? ऐसे भावना आ सकता है कि नालायक कब छुटकारा पड़ेगा इससे? ऐसे कभी सोच सकता है कि कितना अच्छा होता ऐश्वर्या राय मेरे को पकड़ती, अपने कोमल हाथों से मेरे को संवारती? ऐसे कभी टेबल नहीं सोचेगा, ऐसे कभी चेयर नहीं सोचेगा, ऐसे मेरा मोबाइल भी नहीं सोचता है। करेक्ट? मोबाइल नहीं सोचता कहाँ फंस गया ये बैरागी मनुष्य के पास, हर समय कॉल करता है तो हर समय कृष्णा 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 कृष्णा, बॉलीवुड चलाओ थोड़ा। ऐसे मोबाइल कभी नहीं बोलता है। तो ये अंतर है मृत और जीवित शरीर के अंदर। और जीवित शरीर में ये जो चेतना आत्मा है, वो आत्मा से ये 3 चीज सृष्टि होता है। जब तक आत्मा है तब ये 3 चीज है। आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ देता है, शरीर में ये 3 चीज दिखाई नहीं दे आता। इच्छा,
भावना और सोचना। हम सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होगा मैं अमेरिका जाऊंगा, कहाँ भारत में बैठा हुआ हूँ, कितना दिन और भारत में बैठा हूँ। हम सोचते हैं अलग अलग तरीके, बट जो मृत्यु हो जाता क्या सोच पाता है? नहीं सोच पाता, क्योंकि आत्मा गुजर गया है। तो आत्मा है, हम आत्मा हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में, वो है आत्मा का लक्षण, सोचने का, इच्छा करने का और भावना का शक्ति। तो ये तीन चीज हमारे अंदर है और ये तीन चीज डिस्टिंग्विश करता है, पार्थक्य है मृत शरीर से। जीवित शरीर एबिलिटी टू थिंक, फील एंड विल। मृत शरीर, it does not have ability to think, feel and will. तो आत्मा का इस तरह हम जान सकते हैं कि हम एक्चुअली जीवात्मा हैं। एक प्रैक्टिकल एनालिसिस दे सकते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा आंख है, ये मेरा नाक है। मैं नहीं बोलता हूं मैं हाथ हूं, मैं नहीं बोलता हूं मैं कान हूं, मैं आंख हूं, मैं नाक हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं। मेरा हाथ है, मेरा आंख है, मेरा कान है, तो मेरा शरीर है। तो मतलब मैं हाथ से भिन्न हो, मैं आंख से भिन्न हो, मैं कान से भिन्न हो, मेरा शरीर है। तो मतलब मैं कौन हूं? तो मतलब मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न हूं, तो मैं आत्मा हूं। तो I am different from body. I don't say I body, I say my body. Then we are different from body. ये मेरा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा किंडल है, I am not किंडल, ये मेरा किंडल है, मतलब आई एम डिफरेंट देन किंडल। तो उसी तरह ये मेरा शरीर है, मतलब आई एम डिफरेंट फ्रॉम माय बॉडी। देन हु एम आई? आई एम स्पिरिट सोल। दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। और जब एक व्यक्ति गुजर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? वो गुजर गए। अरे कौन गुजर गया? अगर शरीर है तो बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है। कौन गुजर गया? आत्मा गुजर गया। और क्योंकि आत्मा गुजर गया, इसीलिए सोचने का शक्ति, भावना शक्ति और इच्छा करने का शक्ति चला गया, और शरीर तुरंत डिटोरिएट हो जाना जाता है। शरीर बॉडी बन जाता है, व्यक्ति से बॉडी बन जाता है जैसे ही आत्मा छोड़ देता है। और हमने भी पहले भी देखा कि देयर आर सम नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग सर्जरी। वो हमने पिछला सेशंस में जब देखा था ये सब चीजें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देयर आर पास्ट लाइफ मेमोरीज। अगर आत्मा नहीं है, शरीर है, शरीर ही सब कुछ है, तो शरीर तो हम जला देते हैं मृत्यु के बाद। फिर दूसरे व्यक्ति कैसे अपना पिछला जन्म याद कर सकता है? क्योंकि वो तो मर गया, वो शरीर था वो जल गया। तो आत्मा गेट्स ट्रांसफर्ड टू द न्यू बॉडी, एंड वही इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, तो फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। एंड that is what Krishna is telling, that Atma is everlasting and it never gets destroyed. So we will recite this sloka. Na jayate mriyate va kadachin. Vijay. Na jayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavitava na bhuyah अजो नित्यो शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते। देखिए क्या लिखा हुआ है, कभी भी पैदा नहीं होता है। म्रियते, मरता भी नहीं है। कदाचिन, कभी भी वो मरेगा नहीं, कभी भी वो पैदा नहीं होगा। नायम भूत्वा भविता न भूयः, ऐसे नहीं कि आज आत्मा पैदा हुआ और कल फिर मर जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा मरेगा, भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आत्मा मरेगा।
और भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा कभी पैदा हुआ है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यो शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, और जब शरीर हन्यमान मतलब मर जाता है, पर आत्मा न हन्यते, मरता नहीं है। तो इस तरह पहला ज्ञान भगवत गीता में भगवान आत्मा का दे रहे हैं, और आत्मा कभी मरता नहीं है अर्जुन। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरता है। अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातना। हे अर्जुन, इसको कोई काट नहीं सकता है, इसको कोई जला नहीं सकता है, इसको कोई सुखा नहीं सकता है, इसको कोई भिगा नहीं सकता है, ये सब समय शाश्वत रहता है। तो अगर सब समय शाश्वत रहता है तो प्रश्न ये उठता है कि हमको शरीर छोड़ने की जरूरत क्या है? तो शरीर छोड़ने का जरूरत यह है कि भगवान बता रहे हैं, जिस तरह कोई व्यक्ति ड्रेस बदलता है तो उसी तरह जब ये शरीर खराब हो जाता है तो हम ड्रेस बदलते हैं। तो ये श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि शरीर बदलना क्यों पड़ रहा है आत्मा को? इसके वजह से कि जैसे क्योंकि शरीर तो मैटर है, हमारा जो शरीर है ये तो मैटर है। जैसे ये मेरा कुर्ता, ये तो एक ना एक दिन फटेगा ना, फटेगा कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा? ये क्या जीवन भर मेरे साथ रहेगा? ये मैटर का मतलब है वो उसका एक दिन क्रिएशन होता है और एक दिन उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसका मतलब है मैटर इज ऑलवेज टेम्पररी। एक दिन ये कुर्ता बना और एक दिन कुर्ता जीर्ण हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह ये कुर्ता है, इसी तरह मेरा बाहरी शरीर भी है। कुर्ता मेरे बाहरी शरीर को ढकता है और ये शरीर मेरा आत्मा को ढका है। तो जब ये शरीर भी खराब हो जाएगा तो इसको मेरे को त्याग करना पड़ेगा, नया शरीर लेना पड़ेगा। तो ये भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सुंदर सा श्लोक है जिसको आप याद कर सकते हैं। ये सुंदर श्लोक 2:13 और 2:22 आप जरूर याद कीजिए। मैं कुछ कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट करके बोल दूंगा हम जब पढ़ाई कर रहे हैं। 2:7, 2.7, 2.13 एंड 2.22। तो ये तीन आप अगर याद करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये श्लोक अच्छा रहेगा। बासामसी, बास मतलब कपड़ा, जीर्णाणी मतलब खराब हो, यथा जिस तरह, विहाया छोड़ दिया जाता है, त्याग कर दिया जाता है। कपड़ा खराब हो गया तो आप त्याग कर लेते हैं। और नवानी गृणाति, नया कपड़ा दुर्गा पूजा में खरीदते हैं और पहनते हैं। नरो परानी, नर मनुष्य पहनता है। तथा उसी तरह शरीराणी विहाया, जब शरीर भी त्याग कर लेता है। कब? जब शरीर जीर्णानी हो जाता है, शरीर जब खराब हो जाता है तो शरीर को भी त्याग करना पड़ता है। अन्यानि संयाति नवानि देहि, नया शरीर उसको फिर मिल जाता है। तो भगवान इस तरह बता रहे हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति अपना ड्रेस बदलता है, उसी तरह एक व्यक्ति आत्मा अपना शरीर बदलता है। तो भगवान, अर्जुन का पहला कंफ्यूजन था कि मैं अपने, अर्जुन का पहला कंफ्यूजन क्या था? मैं अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों को कैसे मारूं, कैसे हत्या करूं? मैं अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को, भाई को कैसे मारूं? तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कौन किसका रिलेटिव है अर्जुन। तुम अगर अपने आप को आत्मा मान रहा है, आत्मा का तो कोई रिलेटिव नहीं है।
और अगर शरीर मर रहा है, शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, तुम किसको मारेगा अर्जुन? आत्मा को मारेगा? आत्मा मरता ही नहीं है। शरीर को मारेगा? शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है। तो किसको तुम मारने का बोल रहे? तुम तो मार ही नहीं रहा है। और अगर तुम सोच रहा है कि मैं मारूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, वो तो एनीवे मरने वाले हैं अर्जुन। तो भगवान भगवत गीता में आगे जाके 27 नंबर श्लोक में वो बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यस्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, हे अर्जुन, जो पैदा हुआ है वो मरेगा मरेगा एक दिन। तुम सोचेगा कि मैं अपने गुरुजनों को, अपने बांधवों को नहीं मारूंगा, वो क्या जिंदा रह जाएंगे? वो तो मरेंगे। तो एक्चुअली तुम अर्जुन किसको मार रहा है? मेरे को पूछो, मेरा कंफ्यूजन हो गया। कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हारा कंफ्यूजन से मेरा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि तुम किसको मारने का कोशिश कर रहा है। आत्मा तो मरता नहीं है, मैं बोल दिया, कोई आत्मा को नहीं मार सकता है, शाश्वत है। और शरीर तो मरा हुआ है, तो मारो अर्जुन। कितना अच्छा फिलॉसफी है ना। मान लीजिए मर्डर किया, जज पूछता है, वो भगवत गीता लेके जाता है और बोलता है 2 अध्याय 27 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, शरीर मरा हुआ है और आत्मा कभी मरता नहीं है। तो मैं किसको मारा है? मैं किसी को नहीं मारा। तो क्या ये हरे कृष्णा, सॉरी, द इंटरनेट वेंट ऑफ। तो इसका मतलब क्या ये है कि कोई किसी को मार सकता है? क्योंकि आत्मा तो कभी मरता नहीं है और शरीर मरा हुआ है। तो दैट इज व्हाई भगवत गीता डज नॉट एंड हियर। अगर ओनली नॉलेज ऑफ सोल इज अल्टीमेट, आत्मा का विज्ञान अगर अल्टीमेट है और आत्मा का विज्ञान के भरोसे पे अगर भगवान अर्जुन को बोलते कि मारो, तो यहीं पे भगवत गीता खत्म हो जाता। दो अध्याय का 27 नंबर श्लोक, करेक्ट। और क्या आगे जरूरत है? भगवान को तो चाहिए अर्जुन को युद्ध करना है, और भगवान ने तो बोल दिया कि आत्मा मरता नहीं है और किसको तुम मारेगा? अर्जुन मारो। तो भगवत गीता इधर समाप्त नहीं होता है, इसका मतलब है कि आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। ओ, आंधी आ रहा है इसीलिए इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आत्मा का ज्ञान, सिर्फ आत्मा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, कंप्लीट नहीं है, कुछ और भी चाहिए। क्योंकि आत्मा का ज्ञान को गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर सही तरीके से आत्मा का ज्ञान को यूज नहीं किया गया, अप्लाई नहीं किया गया, ये बहुत गड़बड़ भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको, तो दैट इज व्हाई द नॉलेज ऑफ द सोल हैज टू बी अप्लाइड इन द राइट वे। हरे कृष्णा, अंधेरा हो गया है। जस्ट वन मिनट, आई विल पुट द टॉर्च। आप सबको मैं दिखाई दे रहा हूं? हरे कृष्णा।
मेरा कैमरा तो बहुत खराब। ये गौशाला है हमारा। हरे कृष्णा। गांव में रहने का बहुत फायदा है, बट ये भी है। हरे कृष्णा। तो किस तरह हम, आवाज आ रहा है ना? आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। से यस। शायद जनरेटर चालू हो गया। तो यस, तो परफेक्ट जनरेटर है। तो हम टेक विलेज में रहते हैं, इसीलिए वी आर स्टेइंग एक्चुअली इन, इसको भी चार्ज में डाल देता हूँ, नहीं तो ये भी बंद हो जाएगा। ओके, तो वी आर, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन टेक विलेज, दैट्स व्हाई वी हैव जनरेटर आल्सो। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो आत्मा का ज्ञान सही तरीके से अप्लाई करना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैं खुद इसको देखा हूं। मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूं, कॉलेज का नाम बताऊंगा नहीं, उस कॉलेज में 2008 में एक बहुत, हमारे कॉलेज में 2008 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जनवरी का महीना था, बस क्लासेस चालू होने वाला था। तो एक लड़का ऐसे ही जा रहा था मार्केट में, रिक्शा से, साइकिल रिक्शा से गिर गया और गुजर गया। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का लड़का था। अब जब गुजर गया तो गुजर गया मतलब वो गिर गया और उसका कुछ तो क्लॉटिंग होने लग गया। तो हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस था ही नहीं। बाहर से एम्बुलेंस मंगवाया गया। आईआईटी का हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं था। तो बाहर से एम्बुलेंस मंगवा के बहुत समय के बाद एम्बुलेंस आया, कलकत्ता लेके जाना पड़ा और रास्ते के अंदर क्या, खड़गपुर से बाहर निकलते ही वो लड़का गुजर गया। बहुत दिन से बहुत सारे लड़के लोग कंप्लेन किए थे कि इधर हमारा हॉस्पिटल फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, एम्बुलेंस अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, पर there was no help। फिर कुछ हॉस्टल के प्रेसिडेंट लोग इकट्ठा हुए और डायरेक्टर को मिलने के, कैसे ऐसे हुआ, एटलीस्ट अभी तो जागिए। तो डायरेक्टर ऊपर से नीचे उतरते समय बताए, क्या हो गया, आत्मा तो कभी मरता नहीं है। कौन मरा है? कितना अच्छा बोला ना, भगवत गीता का श्लोक बोला डायरेक्टर ने। आत्मा तो कभी मरता नहीं है ना, तुम इतने लोग क्यों परेशान हो, आत्मा कभी मरता है। हाउ फुलिश ऑल ऑफ यू, डायरेक्टर से बताया। बच्चे लोग 7 लोग आए थे, फिर चले गए। 7,000 की प्लाटून लेके आए। डायरेक्टर का बंगलो, डायरेक्टर की गाड़ी, जितने सारे सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिए। डायरेक्टर का कॉलर पकड़ के अपने ही हाथों से, डायरेक्टर के हाथों से रेजिग्नेशन लेटर साइन करवाया। 7 महीने तक डायरेक्टर वाज absconding from the institute। That is the power of misapplication of knowledge of Gita, knowledge of soul। खाली ज्ञान याद रखने से नहीं होगा। ज्ञान खाली याद रखने से, गूगल से पढ़ लेने से, यूट्यूब को अपना गुरु मानने से ऐसा हालत होगा। गलत जगह ज्ञान अप्लाई करेंगे और पिटाई खाएंगे। बेचारा आ ही नहीं पाया, फिर फाइनली रेजिग्नेशन लेटर ही देना पड़ा। तो ये समस्या है। इसीलिए खाली अगर नॉलेज ऑफ सोल वाज सफिशिएंट टू टेल अर्जुना टू फाइट इन वार, then Krishna would have ended Bhagavad Gita in this chapter, in this sloka 22-27. But Krishna goes ahead to tell how to apply this knowledge of soul actually in practical basis in our practical life. Krishna goes ahead
to speak the application of the knowledge of soul, right? Because the knowledge of soul needs to be applied in right way. And that is what is called Karma Yoga. And this is the link from second chapter to the third chapter, that is Karma Yoga. And if you will see, though तृतीय अध्याय का शीर्षक कर्म योग है, पर कर्म योग भगवान द्वितीय अध्याय में ही चालू कर लेते हैं. द्वितीय अध्याय का 39 श्लोका से ही भगवान 39 श्लोका अगर देखेंगे द्वितीय अध्याय में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, अभी मैं बताऊंगा ये जो ज्ञान तुमको दिया उसको कैसे तुम जीवन में अपना सकता है, और वो है कर्मयोग. कर्मयोग मीन्स डूइंग आवर कर्मा बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ सोल. आत्म की विज्ञान की प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके हम जब कर्म करते हैं वो कर्मयोग बनता है. पागलों की तरह जो भी कर्म मैं करूंगा उसको मैं कर्मयोग बोलूंगा, ये सही नहीं. इसीलिए नॉलेज ऑफ द सोल ज्ञान है और कर्मयोग विज्ञान है, विशेष रूपेण ज्ञान. क्या है विज्ञान? ज्ञान और विज्ञान में अंतर है. ज्ञान इज साइंस एंड विज्ञान इज टेक्नोलॉजी. साइंस बोलता है कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को ऐसे ऐसे कर किया जा सकता है, पर टेक्नोलॉजी लैपटॉप बनाता है, चिपसेट बनाता है. करेक्ट? सो टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड साइंस. साइंस इन इटसेल्फ हैज नो वैल्यू. ठीक है, समझ गया. बट व्हेन it is made into technology, then it becomes very important. तो उसी तरह knowledge of soul is the knowledge, but karma yoga, it is the vigyan, it's the application of the knowledge in our day-to-day life. So next class we will see the practical application of the knowledge of soul, so that we apply the knowledge of soul in its right application. Otherwise we'll also land up into problem, just like the director of this prestigious institution of our country. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Is there any question? Please ask. Prabhuji, in chat box there was one question, Prabhu. In chat box there is one question, but what happened? I went off and came back, so I'm not able to see the previous chats. That is, yes, one raise of hand is there. Srinivas ji, please ask. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Yes. Dandavat. Your identity, please. I am Shrutaki Das from Kakinada, Andhra Pradesh, friend of Kushal Bihari Prabhu. Okay. Please tell. Prabhuji, in one of the slides you mentioned that soul is the external dress of body. Is it correct, or body is the external soul? Sorry, soul? Soul, in one of the slides it mentioned that soul is the external dress of body. Soul is the external. Is that mentioned like that? Soul is the external body? I don't know which slide. Soul is not the... Oh, in the dress? No. Soul takes on. Soul is like external dress, for the body, just like the body is like a dress, and soul is like the person wearing the dress. Like that it means. I think I need to change the wordings so that it becomes more clear. I will do that. Okay. I saw that. I need to change the wordings a little bit so that it makes it more clear. Actually, it means that just like there is a dress for the body, there is the soul for the body. You are understanding? So Yes. It needs more explained. Yes. Any more doubt? No. Yes, Prabhuji, in chat box there is one question now. You please tell. I'm not able to see the chat box questions at all. Okay, yes, Prabhuji, I'll just read. Guru and Acharya, we need both in our life, is the question. Yes. We need both. We need Guru and Acharya both. Acharya is one who teaches by example. Guru is who tells, refers the example of an Acharya
and tells how to follow the acharya. So we need guru and acharya both. Sometimes the guru itself acts like an acharya. Sometimes there is another acharya and guru is different, like that it may be. But acharya means one who teaches by example. So if a guru teaches by example, he is an acharya. And acharya can be guru, he may be teaching. So like that. So both are required, and sometimes one person can play both the roles. Right? Anyone else? Hare Krishna Prabhuji, delivered pranam. Just 1 minute. One person raised hand before you. Devottam ji. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. प्रभु जी एक डाउट था, ये सोल ना पैदा हो सकता है ना डाई हो सकता है, तो फाइनली ये सोल का डेस्टिनेशन क्या है और इतना सोल का क्रिएशन का क्या जरूरत है? तो वेरी नाइस क्वेश्चन. तो सोल का ना क्रिएशन हुआ है ना डिस्ट्रक्शन होता है, तो सोल हुआ ही क्यों? सोल, व्हाट इज द रीजन फॉर द अस्तित्व ऑफ द सोल? सो आर यू मैरिड? हाँ प्रभु जी, मैरिड हूँ. यस. सो योर किड्स? यस, एक है 5 साल का. Yes, 5 years old. There are so many kids even lying. Why you have kids? What is the purpose of having kids? After enlightening from Gita, समझ में आ रहा है कि that is a part of Maya. Let's not focus on Gita. Let's speak from a layman point of view. Why anyone has a kid? It is a बहुत बड़ा बर्डन है. बाप रे, बच्चे को वो बड़ा करना, वो सब करना. Is it not? But part of life है इसीलिए. Part of life, but it's gives happiness, right? Yes, yes, right. Correct. So exactly, just like संतान से आनंद मिलता है, तो भगवान परमात्मा है. भगवान अपने संतानों को सृष्टि करते हैं, expands just for enjoying happiness. Okay, Souls are santan of the Lord, just like you have kids who give you a lot of happiness. That is definitely a little burden of raising them, but that is also an happiness. Right. So the soul in an expansion of the Lord, Bhagwan, just to reciprocate happiness. आत्मा और परमात्मा के बीच में आनंद आस्वादन के लिए आत्मा की सृष्टि है परमात्मा. Okay, Prabhuji. Pranam, Prabhuji. Yes. Prabhuji, Hare Krishna Prabhuji. Yes. Prabhuji, whether I am right or wrong, I don't know. So I had learned that from Bhagavatam that the soul generally emerges or take birth from the pores of a body of Lord Vishnu, right? Soul nahi, universes. Okay, that is universes. Universes, yes. One universes comes out from Mahavishnu's sweat pores. Okay. And then the souls who are rebellious from the spiritual world, they are sent to this material world, like that. Okay. If I am right, soul is a part of Supreme Soul. Then if a person does something wrong, like heinous crime, then why Supreme Soul does not stop? Oh, why Supreme Soul? Dilip is asking why Supreme Soul does not stop a person who does crime. Supreme Soul says so many times. But problem is, if you don't pay attention and we don't hear, just like in your car, or then we have Radio Mirchi 93.5. आप रेडियो मिर्ची सुनेंगे तो 94.8 चलेगा नहीं. आप तो जिसमें ट्यूनिंग करेंगे वो ही सुनेंगे. तो भगवान का FM चैनल 108 है और हमारा क्या चल रहा है 93.5. रेडियो मिर्च सुनेंगे कैसे? हमको ट्यून करना पड़ेगा. And that tuning process we need to learn. And when we learn that tuning process, then we will also understand and able to hear Krishna's voice. But जब तक tuning process नहीं है, तब तक क्या हम पाप करते रहेंगे? नहीं. That is why Krishna sends his message externally in the form of books, scriptures, शास्त्र, जिसको पढ़ के हमको समझ में आ सकता है कि भगवान अंदर से बैठ के क्या बता रहे हैं.
वही भगवान जो अंदर बैठे हुए हैं वो बाहर निकल के कृष्ण बन के अर्जुन को विचलित करके समझाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम अंदर का बात समझ नहीं पा रहे, है कि नहीं? अगर हम भगवान का 108 FM लगा देते, अच्छे से सुन लेते, तो भगवान को अवतार ग्रहण करके अर्जुन को विचलित करके अर्जुन को ज्ञान भगवत गीता नहीं देना पड़ता। अंदर ही सब ट्रांसमिशन हो रहा है। एक्सटर्नल ट्रांसमिशन का जरूरत है क्योंकि इंटरनल ट्रांसमिशन तो फेलियर है। इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा पूरा फेल है, तो भगवान को एक्सटर्नली आके बताना पड़ता है फाड़ फाड़ के, फिर भी लोग समझते नहीं पड़ते, राइट? सो पर जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, सीखेंगे, देन आवर इंटरनल कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। और मैं खुद ये मेरे जीवन में देखा हूं। नेक्स्ट क्लास अगर आप याद करेंगे, याद दिलवाएंगे, तो मैं बताऊंगा आपको हाउ आई हैव एक्सपीरियंस्ड वेरी स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इन माय हार्ट, राइट? So I will tell maybe. Yes, anyone else? Subham ji बता रहे थे कुछ तो प्रश्न. Yes, Prabhuji, there Hare are two Krishna more Prabhuji, questions, Prabhuji. Dandavat Pranam. Okay. Yes, after this then I'll take that question. Yes. Prabhuji, I don't have a question. I just wanted to share a feedback. It was one of the best session I have ever attended. I'm telling it from my heart. The kind of humor which you added, which you injected in a very serious topic, it made entire thing like a cakewalk. Yes. You made chapter 2 so simple and so easy to understand. It was Chapter is unbelievable, not over. Prabhuji. Just started first section. Yes, but it is getting so intensified interestingly that we are just attached to it due to all those humors and stories which you're adding in between. So thank you so much. It adds on to the overall values, Prabhuji. Thank you so much. Now there is one more question by Purnima madam. What is the origin of the soul? If it doesn't die, take birth or die? Yes. So the origin of the soul is from spiritual world, from Krishna. And भगवान के धाम में टाइम जैसा डायमेंशन ही नहीं है. There is no time only in spiritual world. इधर origin बोल पा रहे हैं, मतलब टाइम है तो origin बोल पाएंगे ना. मैं पैदा हुआ 1987 में नवंबर में 12 नवंबर 1987 11:10 AM मैं बताऊंगा, बिकॉज टाइम है तो टाइम को यूज करके मैं अपना क्रिएशन का टाइम बता रहा हूं. बट देयर इज नो टाइम ओनली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड. टाइम का जो डायमेंशन है ही नहीं, तो व्हाट origin, व्हाट एवरीथिंग इज इटर्नल. देयर इज नो पॉइंट व्हेन देयर वाज नो सोल. Souls were eternal. And there is no point when there was no God. God is also eternal. Like someone may ask, na, if God created everything, who created God? There is no question of creation or destruction. Creation or destruction comes only when there is time. Time ही नहीं है, so everything is eternal. In spiritual world, everything is eternal. Just like चींटी के लिए, just to give example what it is, what it means to have no dimension. Dimension है ही नहीं तो क्या? जैसे चींटी जब चल रहा है उसका केवल लेंथ और ब्रेड्थ देख पा रहा है, करेक्ट? हाइट का डायमेंशन उसको पता ही नहीं है. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? आई एम गेटिंग लिटिल मोर टेक्निकल. चींटी जब चलता है उसको लेंथ दिखता है, ब्रेड्थ दिखता है. हाइट का को उसको पता ही नहीं. हाइट एक डायमेंशन है, उसको पता भी नहीं है. चींटी क्या पता लगा सकता है? बाप रे 6 फुट का इंसान है, ऐसे देख कर सकता है? चींटी नहीं कर सकता है. इट हैज ओनली 2 डायमेंशनल विजन. 2D विजन है चींटी का. बट जस्ट बिकॉज चींटी हैज 2D विजन, does that mean that 3D does not exist? It exists. तो उसी तरह just because we are living in a dimension of time, that does not mean that a dimensionless world with no time does not exist. And that is because we have come from this world of spiritual world where there is no time. That is why, Hare Krishna, that is why we always aspire for timelessness. कैसे होता अगर मैं मरता नहीं? क्यों? क्योंकि हम उसी दुनिया से आए हैं, कभी हम मरते नहीं हैं. हमारा इच्छा होता है.
नहीं मानना, that is wrong. And next, in human society, we Purus and Prakriti, men and women, is soul unique? Yes, soul is same for man, woman, dog, cat, earthworm, COVID virus or bacteria. The soul is same for everyone. It's not that man have different soul, women have different soul, nothing like that. The external body is only different. Is everything really predestined to do our action? Oh, this we will see in law of karma. जब हम कर्म योग पढ़ेंगे, डेस्टिनी एंड फ्री विल के बारे में पढ़ेंगे. ये थोड़ा और समय लगेगा, इतना जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे. तो अभिषेक जैना जी, everything is predestined and everything is also can also be changed. We need to little bit understand कि कैसे how things can be predestined and also can be changed in future. तो वो हम थोड़ा समय लगेगा. Anyone else has any question? Prabhuji, one question that was there much before getting Forget our disconnected. task, else we can correct our improve our task immediately. क्यों हम भूल जाते हैं हमारे पूर्व जन्म के करतूतों को? देवोत्तम जी पूछ रहे हैं, क्यों हम भूल जाते हैं हमारे पूर्व जन्मों की करतूतों को? क्योंकि भगवान हमको कृपा करते हैं. पूर्व जन्म में आप किसी की पत्नी है, किसी के पति है, किसके बेटा है, क्या है, और कभी कभी बहुत कष्टों के साथ भी आप गुजरे होंगे. सब अगर याद रह जाएगा, उसका कष्ट भी याद रहेगा. तो इसलिए भगवान जानबूझ के भुला देते हैं ताकि हम इस जीवन में शांति से रह पाए. इस जीवन में हम शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसी जीवन का आइडेंटिटी के साथ हम शांति से जी नहीं पाते हैं. 10 जीवन याद रहेगा तो हमारा शांति तो गया. करेक्ट? इसी जीवन का आइडेंटिटी हम झेल नहीं पाते हैं. हाय हाय हाय, क्यों इससे शादी किया, हाय 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 हाय, क्यों इसका पत्नी में बना, क्यों इसका पति में बना, हाय 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 हाय. अगर पता चलेगा पिछला जीवन का कौन, कितने पति, कितने पत्नी और क्या बेटे बेटी आपको परेशान किए, और एंजाइटी हो जाएगा. एक जीवन का एंजाइटी झेल नहीं पाता है व्यक्ति, तो भगवान आपको सैकड़ों जीवन का एंजाइटी कैसे देंगे, ज्ञान कैसे देंगे? इसीलिए ऐसे नहीं कि भगवान ज्ञान नहीं देते हैं, नारद मुनि सब जानते हैं, इसलिए नारद मुनि को त्रिकाल यज्ञ बोला जाता है. बट ही हैज द कैपेसिटी टू हैंडल आल्सो ना. एंड जब तक आपका वो कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने का, भगवान नहीं देंगे आपको, क्योंकि भगवान करुणामय है. कृष्णा इज आवर वेल विशर. नारद मुनि कैन हैंडल what was he in past life, what was we in past life. He can handle so much of data, and that is why he has been given that data. If you cannot handle, better not have, for our peace of mind. So Krishna is merciful for our peace of minds, otherwise we will have a lot of identity crisis and so many problems. That's why Krishna makes us forget. But there are ways to remember, and that is astrology. एस्ट्रोलॉजी लोग जाते हैं, आजकल के लोग जाते हैं फ्यूचर देखने के लिए. एस्ट्रोलॉजी का काम है पास्ट बताने के लिए, ताकि आप फ्यूचर सवार पाएं. एस्ट्रोलॉजी's definition is to tell us about past so that we can mend our present, so that our future can be better. That is the definition of astrology. But astrologers in Kali Yuga are becoming weak. They are not able to see the past because they don't have that much of knowledge and that much of insight. उसके लिए बहुत साधना करना पड़ता है. तो वो कुछ कैलकुलेशन बोल के बोलने लग जाते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसे होगा, वैसे होगा. वो बकवास. The main reason a person, जैसे हम देखते हैं शास्त्र में भी उल्लेख है एस्ट्रोलॉजर के बारे में, बट देयर मेन फोकस इज आपका पूर्व जन्म में क्या क्या आपने किया जिसके वजह से अभी आपको कष्ट मिल रहा है, और अभी आप क्या कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको ये कष्ट ना मिले. दैट इज डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. जो कलयुग में एस्ट्रोलॉजर लोग ठग रहे हैं. सिर्फ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? मेरा फ्यूचर में क्या होगा. अरे पास्ट पहले देखो. दैट इज मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी. मैंने पास्ट में क्या किया था बताइए, उसके हिसाब से मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ.
अभी भी अगर आप पास्ट अपना जान लेंगे सही तरीके से और प्रेजेंट को संवारेंगे भगवत गीता के अनुसार, आपका फ्यूचर बदल जाएगा. So that is the definition of astrology. Is this clear? So we need to learn. We should not think that there is no way. Krishna has given the way for us to understand our past life. That is through astrology, science of astrology. Right? Is this clear, Devottam ji? Yes, Prabhuji, one question We was- all have different biometric fingerprint. Yes, because depending on our karma, we have our biometric fingerprint. There is a person, you will be amazed to hear there is a person in Chennai. There are classes of astrologer. They just take your fingerprint, and there is one samhita called Agastya Samhita, Agastya Nadi. Just by your fingerprint, they can tell all your past. अभी भी है, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. 3,000 रुपए लेते हैं. आपको कांटेक्ट चाहिए तो, मैंने तो कभी दिखाया नहीं, क्या जरूरत है पास्ट देख के. प्रेजेंट तो ऐसा है, पास्ट क्या होगा पता नहीं, फ्यूचर भी क्या होगा पता नहीं. ना आगे ना सन्यासी का, ना आगे ना पीछे, ना बाएं ना दाएं, वो क्या करेगा. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारा सेम ही है, एक ही कलर. तो पर किसको अगर इच्छा है तो फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है अगस्त्य नाड़ी. वो अगस्त्य संहिता में मेंशन है. आपका देखिएगा, आपको कुछ प्रश्न पूछेगा, सब मैच होता है. आपको वो आपका जन्म कुंडली बता देगा, आपका नाम बता देगा, आपका पिता का नाम, आपके पर पिता का नाम सब बता देगा. आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, खाली आप फिंगरप्रिंट भेजेंगे. तो अभी भी कलयुग में इतना आगे बढ़ने के बाद अभी भी इस तरह के लोग हैं जो केवल फिंगरप्रिंट से देख सकते हैं. उनको अगस्त्य नाड़ी बताया जाता है. चेन्नई में है, हमारे कुछ डिवोटीज दिखा के आए हैं, बता दिया सब कुछ. तो वो देखेंगे, पहले ढूंढेंगे. अगर आपका मिल गया अगस्त्य नाड़ी में, तो देन आपको फोन करेंगे कि आपका मिल गया है, आप 3,000 रुपए दीजिए, फिर आपको हम बताएंगे. तो अगर नहीं मिलता है तो फिर छोड़ देते हैं. सबका मेंशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे संहिता लोग जल भी गए हैं कालक्रम से वैसे. बट ये है, ये एक विज्ञान है. आप सुन के हैरान होंगे, अभी भी लोग हैं चेन्नई में है. दे कैन टेक आवर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट एंड टेल आवर ऑल अबाउट आवर पास्ट. हरे कृष्णा. यस देवोत्तम. यस प्रभु जी, मैंने एक्सपीरियंस लिया है. बायोमेट्रिक वो लेके उन्होंने पूरा डिटेलिंग बताया था. मैं गई थी एक बार सिर्फ देखने के लिए कि एक्चुअल में है या नहीं. देखो मंजू मैडम बता रहे हैं कि अगस्त्य नाड़ी बहुत आवाज आ रहा है आपकी तरफ से. हाँ शायद. Prabhuji, one question was, what are the qualities of Arjuna that made Krishna very affectionate towards him? What are the qualities of Arjuna that made Krishna affectionate? Arjuna was so affectionate. Krishna was so affectionate towards Arjuna because of his quality of humility. Vidya Vinaya Sampanne. आगे जाके भगवान 5th chapter में ये बताएंगे. Vidya Vinaya Sampanne. Arjuna was very humble to accept Krishna's knowledge. This is the first thing. Second thing, Arjuna was not envious of Lord. द्वेष नहीं करते थे भगवान को. इतना ज्ञान है, मेरे को तुम पढ़ा देगा, अहंकारी नहीं थे. Because Arjuna was non-envious and he was Krishna's devotee, that made him qualified to receive the knowledge. So we need to be humble. If we want Krishna's affection, we need to give up our ego. Whether we are dealing with our husband, our wife, our boss, or anyone, if we maintain and preserve our ego, then we will not receive affection of Krishna. So we need to become humble. Vidya Vinaya Sampanne. Vidya Vinaya Sampanne. Sampanna matlab complete. Vidya, knowledge, becomes complete only through humility. Vinaya. ये भगवत गीता का श्लोक है.
पंचम अध्याय का श्लोक है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल, हरे कृष्ण।